Mean by hello? Hello words what indicate? Hello words indicate halogens. Means halogens are present. What are halogens? Halogens are chlorine, bromine, iodines are the halogens. And as we know, alkanes general formula is CnH2n plus 1. And haloarenes. Halo means same as halogens, and arenes means, what is the mean of arenes? Arenes means rings. Alkane means straight chain, and arenes means cyclic or ring system. So from the chapter name we get to know that we had to study haloalkanes means halogen present on alkanes, and haloarenes halogen presents on ring, and halogens are chlorine, bromine and iodines, fluorine. Okay, so first we know that alkane if we add halogen, any halogen, so it becomes haloalkane, and H removes. In the place of hydrogen in alkane, chlorine adds, so it forms haloalkanes, and halogen is okay. So in alkane, addition of chlorine replaces the hydrogen, and it form haloalkane. So let's start about this chapter. We only discuss very important topics that came mostly in exams. So let's start. So first we have to we have to see that on basis of number of halogens atom, on basis of number of halogen atoms. First is mono haloalkane. So mono means one, halo means halogen and alkanes. So mono haloalkanes. So what is the formula? C2H5 and X, alkane plus halogen, mono haloalkane. ठीक है. Second is dihaloalkane. Dihaloalkane means two halogens are present, like CH2X and CH2X. Mono means one. Mono means one halogen, and di means two, right? So ऐसे करके ट्राई haloalkane. Okay, so means जितने now mono haloarene means, mono means one, halo means halogen, and arene is ring. What is arene? Is ring. So ring chain plus one halogen atom. If two halogen atoms are present, then it becomes ring, and one halogen atom and two. So this is dihaloarene, right? This on basis of compound containing sp3 carbon halogen bond. So first is, what is alkyl halide? This is important one that we had to mostly read about this in this chapter, or also we said this hello alkanes, right? So this is halogen attached to carbon atom which is attached to
one carbon atom. So this is primary or 1 degree haloalkene. Now next is so this is 2 degree or secondary. Next is R, and this is R, and this is 3 degree or tertiary. Okay, so this is why this is primary, because this carbon atom attached to this halogen attached to which carbon, this, and this carbon attached to only one carbon atom, so this is primary. This halogen attached to carbon which is combined with 2 carbon atoms, so this is secondary. And this halogen attached to carbon which consists of 3 carbon, so this is tertiary. Next is allylic halide. So allylic halide क्या है? Compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon डबल बॉन्ड. देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे समझते हैं. दिस इज डबल बॉन्ड and this is halogen. So देखो what it said is sp3 carbon next to carbon means the halogen atom is bonded to an atom which is sp3 hybridized carbon atom next to carbon double bond, means sp3 hybridized carbon atom से attach हो जो halogen, and this sp3 hybridized carbon atom is present next to double bond. So this is allylic halide. मीन्स सिंपल सी बात है कि जो भी अपना हेलोजन प्रेजेंट है, राइट, जो भी हेलोजन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए sp3 कार्बन से, तो उनको क्या बोल देते हैं? एलाइलिक हैलाइड. ओके, सो नेक्स्ट इज, सो नाउ वी स्टडी अबाउट एलाइलिक हैलाइड. ओके, राइट. So now we had to move further, that is one is benzylic halide. Okay, and other is vinylic halide, and other is aryl halide. This is sp2 carbon, this is sp2 carbon, and this is sp3 that continue to the other allylic and alkyl halide. So benzyl halide means benzyl नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग होगी, और बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा? कार्बन attached to halogen atom. So these are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to benzene ring. Okay, benzylic halide. Halide means this, benzene means benzene ring, so this is benzylic halide. Next is vinylic halide. Vinylic halide. So yes, vinylic halide means ऐसे कंपाउंड जो हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्ड हो डबल बॉन्ड के साथ वाला. मीन्स अभी आपने पहले हमने देखा होगा, हमने पढ़े हैं
हमने पढ़े एलाइलिक हैलाइड, उसमें क्या हो रहा था कि जो डबल बॉन्ड है उसके यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ हेलोजन प्रेजेंट है, बट नहीं, विनाइलिक हैलाइड कौन सा हैलाइड होता है, जो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। इसमें क्या है, हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट इज एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मीन्स एराइल, एराइल का मतलब मैंने पहले बताया, एराइल का मतलब क्या होता है, रिंग, तो रिंग प्लस हैलाइड, दिस इज एराइल हैलाइड, सिंपल। दिस इज sp2 hybridized carbon atom, ठीक है, and this is aromatic ring and this is halogen atom. So halogen atom attached to halogen atom bonded to sp2 carbon atom of ring, okay. सो सिंपल सी बात है, ये याद भी यहाँ की यहीं कर लो, कुछ नहीं है इसमें, दैट इज़ सो सिंपल। बेंजाइलिक हैलाइड मीन्स बेंजीन रिंग प्लस हैलाइड, हैलाइड CH2X। एराइल हैलाइड मीन्स बेंजीन रिंग, एराइल, एराइल का मतलब क्या होता है, साइक्लिक और बेंजीन रिंग प्लस हेलोजन एटम। विनाइलिक हैलाइड मीन्स डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हेलोजन एटम, कहीं पे भी डबल बॉन्ड पोजीशन के साथ और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हो, उसको क्या बोल देंगे, विनाइलिक हैलाइड। सो ये तो हो गए कंपाउंड्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट देयर रिएक्शंस, ओके, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती है हमें वो पढ़नी है अब इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके, इसको अच्छे से पढ़ना बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, यस। और मैं इसमें सिर्फ वही कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आती हैं एग्ज़ाम में, एंड ये पूरा NCERT का है, क्योंकि मेनली एग्ज़ाम में NCERT से ही आता है। अगर आपने NCERT अच्छे से कर रखी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो बाहर से क्वेश्चंस की, बट अगर NCERT की कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो पेपर में वही आता है, बस NCERT के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, राइट, ओके। सो इसमें मेथड बहुत सारे हैं, बहुत मेथड्स हैं जिनसे हमें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम मेथड देखते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, राइट, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजन मैं आपको पहले भी बताया, हेलोजन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, दीज आर द हेलोजन्स, ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, CH3 CH2 CH3, ठीक है, दिस इज प्रोपेन, राइट, मीन्स अ जनरल अल्केन। अब हमने उसमें क्या डाला, Cl2 एंड UV लाइट, ठीक है, Cl2 और UV लाइट, और साथ में ये हमें सिर्फ एक इक्विवेलेंट में डाला, हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा इससे क्या बन रहा है, CH3 एंड CH2Cl, ओके। एक तो ये बनेगा, मीन्स नथिंग हैपन्स, देखो दिस हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन ऑफ दिस CH3 का एक हाइड्रोजन गया और उसकी जगह क्लोरीन का एक एटम प्रेजेंट हो गया, देखो कुछ नहीं है, CH3 CH3 CH2 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और उसकी जगह आके क्लोरीन लग गया, बट इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ये बनेगा, इसके साथ एक और बनेगा। अब ये क्लोरीन जरूर थोड़ी यहाँ पे आके लगे, क्लोरीन यहाँ पे भी तो आके लग सकता है, तो अगर क्लोरीन यहाँ पे आके लगेगा, ठीक है, सो अगर क्लोरीन
यहाँ पे आके लग गया। तो अब ये है कि दोनों बन सकते हैं प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बताओ, खुद दिमाग लगाओ। दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। वाई? क्यों? क्योंकि ये क्या है 2 डिग्री एंड दिस इज़ 1 डिग्री एंड वी नो 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट। 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सो ये मेजर होगा एंड ऊपर वाला माइनर होगा। और ये बना क्या है, एल्केन से एल्काइल हैलाइड। हम किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड की। सो ये क्या बने हैं, एल्काइल हैलाइड एल्केन से बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या किया हमने, अल्केन में Cl2 डाला है 1 इक्विवेलेंट, तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स बने हैं। और इसमें से हुआ क्या है, प्रोपेन में क्या हुआ है, जो क्लोरीन एटम है वो इस एक हाइड्रोजन की जगह आके लग गया और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो अब ये क्लोरीन एटम यहाँ पे भी आके लग सकता है और ये यहाँ पे भी आके लग सकता है। अगर ये यहाँ पे आके लगेगा तो अपने पास 2 डिग्री बनेगा, और हमें पता है कि 3 डिग्री इज़ मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। सो ड्यू टू दिस इज़ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ माइनर प्रोडक्ट। ओके, सो एक तो हो गया फ्री रेडिकल। साथ के साथ याद कर लो, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या है, कोई भी एल्केन लिया उसमें क्लोरीन Cl2 डाल दिया, एक हाइड्रोजन जगह क्लोरीन आके लग जाएगा और कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है अल्कोहल से, ठीक है। अल्कोहल से कैसे बनता है, देखो दिस इज RH अल्कोहल, राइट, प्लस HCl, right, in the presence of ZnCl, right, and इससे बनता क्या है RCl plus H2O, right. So this is reaction of alcohol with HCl in presence of ZnCl2 to form RCl plus H2O। अब देखो इसमें ना हुआ क्या है, इस रिएक्शन का पूरा एक मैकेनिज्म भी है कि कैसे होता है। ये एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। इसको याद करने का तरीका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और एक सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और एक सब्स्टिट्यूट मतलब जा रहा है यहाँ से। सो इसको याद करने का सीधा तरीका, एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है RCl, OH जा रहा है तो OH यहाँ आ गया, OH H ही साथ बनेगा तो क्या बनेगा H2O। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, अल्कोहल प्लस HCl in presence of ZnCl to form RCl plus H2O। इसका मैकेनिज्म भी है, उसमें क्या होता है कि जो ROH है, इसमें जो ऑक्सीजन है अल्कोहल का वो रिएक्ट करेगा ZnCl2 के साथ। क्यों? क्योंकि ZnCl2 एक ल्यूविस एसिड है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन के। ओके, सो बुक में है नहीं ये रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, सो आई विल राइट इट। देखो मैंने क्या कहा, अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या आया ZnCl2। ओके, NCERT में ये रिएक्शन दी हुई है बट इसका मैकेनिज्म नहीं दिया है। आप पेपर में इसका मैकेनिज्म भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये तो लिखना है बट इसके साथ मैकेनिज्म भी लिखना है क्योंकि ज़्यादा नंबर तो तभी मिलेंगे ना। तो अल्कोहल प्लस ZnCl2। अब इसमें क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन एंड जिंक के बीच, राइट, ऑक्सीजन एंड जिंक के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है, बट फिर भी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिए तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गई। अब अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गई तो वो क्या करेगी, वो
कार्बन से ले लेगी इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए, अब इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, प्लस साइन आने के बाद, प्लस साइन के बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी हाईली, तो उसके बाद इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए ताकि इसका जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है ऑक्सीजन का, वो ख़त्म हो जाए। ऑक्सीजन का प्लस चार्ज ख़त्म हो जाए, इस वजह से वो इस कार्बन से एटम से ले लेते हैं। अब ऑक्सीजन का प्लस चार्ज ख़त्म हो गया तो ये बच जाएगा R प्लस, Zn नेगेटिव, Cl2 और OH, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, Cl नेगेटिव डाल दो, RCl बन गया, और इसमें H डाल दो तो H2 प्लस ZnCl2 मीन्स वो तो निकल जाएगा, जो रिएजेंट डला था वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिएजेंट यहाँ लिखा जाता है बिकॉज ये डला है और ये निकल जाएगा, प्रोडक्ट में कहीं नहीं दिखाई देगा। सो अपने पास क्या बनी, देखो रिएक्शन बहुत सिंपल है, कुछ हुआ है रिएक्शन में, कुछ नहीं हुआ है। क्या किया है, अल्कोहल प्लस ZnCl2 है, तो ऑक्सीजन ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पहले से, उसके बाद उसने और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन को ये प्लस चार्ज स्टेबल करना है, तो इस वजह से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ZnCl2। तो यहाँ पे क्लोरीन आके ऐड हो गया, क्लोरीन आके ऐड हो तो RCl बन गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो गया तो ये H2O बन गया प्लस ZnCl2, जो हमारा एक रिएजेंट था, राइट यहाँ पे। सो दिस इज हाउ alkyl halide forms from the alcohols, right? So next reaction is very important reaction. Sandmeyer's reaction. This is another method of preparation of, so एक हमने अल्कोहल से पढ़ा है, एक हमने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से पढ़ा है। सो दिस इज़ आवर थर्ड, राइट। सैंडमेयर रिएक्शन, इसको टिक कर लो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाता है वेरी। मैं साथ के साथ जो क्वेश्चंस मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो साथ के साथ बता के चल रही हूँ कि हाँ, सैंडमेयर रिएक्शन ऐसी है कि हमेशा पूछी जाती है, अभी भी आगे भी, BSc में, MSc में, ऑलवेज सैंडमेयर रिएक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन, ओके। सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ओके। सो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये बेंजीन रिंग, बेंजीन पे NH2 प्रेजेंट, उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो सैंडमेयर रिएक्शन किसकी होती है, एनिलीन की, ठीक है। और इससे बनता क्या है, बेंजीनियम डाइजोनियम सॉल्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है, और बोल देता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अभी X क्या है, कोई भी हेलोजन एटम, फ्लोरीन, ठीक है। सो दिस इज़ हेलोजन एटम एंड दिस इज़ N2 प्लस मॉलिक्यूल, तो दिस इज़ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब किसकी प्रेजेंस में बनता है ये, एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HX। दिस हेलोजन कम फ्रॉम देयर ना, दिस हेलोजन कम्स फ्रॉम देयर्स, ठीक है। इसका टेम्परेचर रहता है ऑलमोस्ट 273 to 278 केल्विन, ठीक है। सो दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसमें क्या होता है, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस HX, जिसका जो X है हेलोजन एटम, वही जाके N2 पे ऐड होता है, तो एंड दिस X इज इक्वल्स टू फ्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। X क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। सो मेन तो सैंडमेयर रिएक्शन ये है, ठीक है।
एक्चुअली अब ये है कि इस रिएक्शन कि सिर्फ रिएक्शन इम्पोर्टेंट नहीं, इसका वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, एनिलीन, ठीक है, इसको लिखना कैसे है, एनिलीन इज ट्रीटेड, aniline is treated with sodium nitrate, and NO2 is sodium nitrate, a diazonium salt is alright। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसके नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं अगर ये लिख लिया ना तो। मिक्सिंग ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विद CuCl2, और इसको क्या बोल देंगे, क्यूप्रस क्लोराइड, है ना, क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट रिजल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय क्लोरीन ब्रोमीन, जो भी हम हेलोजन डालेंगे ना उससे हमारा रिप्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है ना। सो क्या किया है, एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ हमने ट्रीट किया है, उससे हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड। हेलाइड हेलोजन कोई भी हो सकता है, लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन। ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सो ये पक्का से आनी चाहिए, ओके ना। मतलब इसको तो छोड़ना मत, इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हुई इस रिएक्शन की मीन्स कि क्या हो रहा है, एंड दिस इज़ दिस इज़ द स्टेटमेंट एंड दिस इज़ द रिएक्शन। अगर ये ज़्यादा नंबर में आया है, ठीक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में इसका मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट अगर हमसे इसका मैकेनिज्म पूछ लिया तो क्या करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ HNO2, ठीक है, HNO2 बनता है। HNO2 कैसे बनता है, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, NaCl। क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो हुआ है, NO2 उधर चला गया, Cl इधर आ गया, कुछ है ही नहीं ज़्यादा। फिर क्या हो गया, अपने को Na प्लस आयन का जनरेशन होगा, ठीक है, NO प्लस आयन जनरेट होगा। अब वो देखो कैसे जनरेट होगा, ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, H प्लस आया तो H ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड O, एंड ये जो ये है ये यहाँ आके लग गया, ठीक है, इस पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, माइनस ऑफ H2, हाइड्रोजन निकल गया, H2O निकल गया, तो ये क्या बना, N+2। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। अब इस नाइट्रोसोनियम आयन का अब एनिलीन आया है, चाहो तो आप ये यहाँ से भी लिख सकते हो कि एनिलीन का जब करा रहे हैं तब से, और चाहो तो स्टार्टिंग से भी लिख सकते हो, वरना सीधा नाइट्रोजन आयन का एनिलीन पे दिखा दोगे तो वो भी सही है। ये एनिलीन है अपने पास, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आयन है, ये ले लेगा, ठीक है। तो फिर अपने पास क्या बनेगा, देखो NH2 का N और H, ठीक है, एक H चला गया और उस एक H की जगह क्या आ गया, N, इस H की जगह ये आ गया, ठीक है। कुछ इसमें है नहीं है ऐसा डिफ़िकल्ट, देखो क्या हो गया, NH2 है, एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया नाइट्रोजन आयन से, ठीक है। और फिर इसका अगर हम टोटोमेरिज्म करा दें, ओके, स्पेलिंग ढंग से देख लो, टोटोमेरिज्म, ठीक है। अगर हम इसका टोटोमेरिज्म करा दें तो फिर क्या बनेगा अपने पास, देखो, N डबल बॉन्ड N डैश O डैश H,
OH, ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाला, H प्लस, तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा, और H2O निकल गया तो फिर अपने पास क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये इधर चले गए, ठीक है, तो ये क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आके नहीं, ये प्लस अब इस पे आ गया ना, ये तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या होएगा, कुछ नहीं, Cl का एडिशन, जो हमने यहाँ HX डाला है, X Cl, ठीक है, Cl ही तो है, वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे आके। दैट इज सो सिंपल, N2 and X, ठीक है। मीन्स ये जो हेलोजन है, हेलोजन X लिख लो, Cl लिख लो, यहाँ पे आके लग गया। देखो हमने अभी क्या पढ़ा है, सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अभी याद करो मेरे साथ। सैंडवेयर रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन से बेंजीनियम डाइजोनियम हैलाइड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस HX। X इज एनी हेलोजन आइटम, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है।